everyone. When we asked NEEF students, what is childhood without stories, we got resounding responses of boring and dry. Indeed, childhood without stories is like taking away its voice. The child in its childhood is a repertoire of tales, experiences, theories, and stories. The quest for adding life to our stories has been one which has kept the authors and artists alive. Our quest to experience and live the magic ends here today. We have amidst us our favorite storyteller, Kapil Pandey. His pursuit began as an attempt to be the voice of his children's stories as a parent, and this pursuit has added to the community of caregivers, educators, authors, publishers by reimagining education with drama. His belief in the power of drama to create a safe and reflective learning space has been an anchoring principle for the community of adults that engage with children day in and day out. To materialize his benefit of belief into action, he presides as the president of the Kutam Foundation that uses drama and football to engage with language and holistic learning. Without further ado, I hand it over to Mr. Kapil Pandey to make us all live and relive the magic of, and power of stories. Thank you. This is good. I have a mic. Yeah. Good morning, everybody. So, I was a backbencher through my life, but I realized it's not really a good thing to see backbenchers. So why don't we use this time to just come forward? बाकी लोग पीछे आते रहेंगे, कुछ अपने आप by default backbenchers बन जाएंगे. आप मत बनिए. Okay, so some of us met last morning to discuss this idea of may the folk be with you, which has nothing to do with Star Wars, by the way. One thing that we talked about last morning was that the folk in folk stories are the people who participate in the folk story that is being shared. Okay? So the responsibility of the folk story that is now coming to you is upon all of us here. Yeah? One thing that I'd like to ask you, do you think any folk story that was told maybe, let's say, 500 years ago first, has it remained the same today? It remains the same absolutely? No, yes, no, no, yes, no. Changes. How does it evolve? Who changes it? Who evolves it? The storytellers. Okay, storytellers, authors, thank you. So it keeps on evolving because people keep changing the story. And who else? Are the authors? Yes, all right. So they think that when they hear the story, they can do some changes in that story, and then they tell other people, and they hear the story, and then they make changes to the story, and that's evolution, yes. So changing misconceptions, falsehoods, yeah? The story might not be very common, because what if people don't like it? Then authors often change and add another adventure to it, and like authors keep on changing the adventures and add twists. Like I have a book, so you've all heard of Cinderella, and there's also a Cinderella twist which I have at home. Super. So they keep on putting twists in on that it doesn't sound boring to people. You heard it all. Okay. And now, thank you all of you for that. Yeah, thanks so much. Now for these stories to change, okay, and it's not just the authors. I like this bit about people listening and changing and change and people. So if you could listen to the story, you become the author of the story, and then you can make the changes you want to make to the story. Yeah? Now for that to happen, the folk that listens to the story, the people that listen to the story, need to be aware of each other, aware of the problems and the misconceptions and the changes that the folk want to make to the story. Which means the folk needs to be in tune with each other. Are we in tune with each other? हमारे सुर से सुर मिले हुए हैं क्या? सुरीले हैं क्या हम? हम वोकल सीखते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल. हमारे गुरुजी कहते थे कि
बेसुरे हो तो चलेगा. You know what बेसुरा is ना? Not being in tune. Yeah? बेसुरे हो तो चलेगा लेकिन बेताला नहीं होना चाहिए. What is बेताला? Not in line with rhythm. You have to be. हम ताल में है कि नहीं है? हैं? वाह, बस एक. Okay, let's do a quick exercise. In fact, we did it last year as well, so some of you might remember. To get into tal. Okay? One way to get into tal, the people who row boats are physically in tal. You know why? कैसे चलती है नाव? नाव चलती कैसे? Paddle is this. What is the other paddle? What do you call this paddle? Row the boat with a flow. set of. Like you have to write two sticks. There are paddles on the sticks, and from that, in a rhythm, you have to just And keep what are the paddling. sticks called? Oars. Oars. And in Hindi you call them चप्पू. Chappu. या तो अब माइक दे दीजिए और चप्पू उठा लीजिए. हाँ, चप्पू सब लोगों को उठाना होगा, बैक बेंचर्स को भी. हाँ, थैंक यू, सुपर. और हमारे बात बोलिए, नाव चली. एक साथ कोशिश करिए बोलेंगे. 1 2 3 गो. नाव चली. हमारे बाद ही बोलिए, कोई बात नहीं. विल गेट इट, विल डू इट टुगेदर एज वेल. नाव चली, कहानी की नाव चली, हमारी कहानी की नाव चली लंबे सफर पे. सामान घर से निकाले गए. यू हैव टू डू दिस. इधर से उधर से निकाले गए, कहानी के घर से निकाले गए और कहानी की नाव में डाले गए. नाव चली, कहानी की नाव चली, हमारी कहानी की नाव चली लंबे सफर पे. सामान घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, कहानी के घर से निकाले गए और कहानी की नाव में डाले गए. हो गया? सबको याद हो गया? हाँ, नाउ वील डू दिस टुगेदर. ओके, 1 2 3 गो. नाव चली, नाव चली. कितनी नाव चली? एक नाव चलेगी. अब हम साथ में करेंगे तो एक बार बोलेंगे बस. हाँ, 1 2 3 गो. नाव चली कि निकाले गए, कहानी के घर से निकाले गए और कहानी की नाव में डाले गए. एक बार फिर से 1 2 3. कहानी घर से निकाले गए, कहानी के आप बहुत बेताले हैं, बहुत ज्यादा. अच्छा, एक काम करते हैं, इस चप्पू को we'll just put it down. Okay, to get into rhythm, the count of 4 really helps. By the way, there are lots of rhythms, but a count of 4 is one of the most popular counts. Okay, you do this now. 1 2 3 4. 1 2. That's the rhythm. Okay, so this is how Now Chali actually happens. Now Chali. Number 3 and 4 are actually silent. नाव चली, कहानी की नाव चली, हमारी कहानी की नाव चली लंबे सफर पे. सामान घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, कहानी के घर से निकाले गए और कहानी की नाव में डाले गए. जब हम ये करना सीख जाएंगे तब हम क्या नहीं कहलाएंगे? तो अपने चारों उंगली उठाइए. ओके, let's do this together once again. 1 2 3 go. नाव चली. 3 4 4. हमारी कहानी की नाव चली लंबे. 3 4. सामान घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, कहानी के निकाले गए और कहानी की नाव में डाले गए. नॉट बैड. ओके, ये चारों उंगलियां नीचे रख दीजिए और चप्पू फिर से उठा लीजिए. Okay, 1 2 3 go. नाव चली. 3 4
4, 3, 4. सामान घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए, कहाँ घर से निकाले गए, और 2, 3. अपना एक हाथ आगे करिए और इधर लेके जाइए. Pat your back. Good job. Okay, now that we are no longer betalas, let's try and get in tune with each other. Okay? केसरिया बालमा तू मोहे नथ मंगवा दे. You know what nut is? No spin, no ring, no stud. Everything falls under this thing called nut. Yeah? केसरिया बालमा तू मोहे नथ मंगवा दे, नथ मंगवा दे, मंगवा दे. Now this line is yours. नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. I can't hear you, but do you know the meaning of the word बेशर? I didn't know this as well. Okay, बेशर actually means वो आभूषण, that piece of jewelry जिसको नाक पे पहन सके. Now, I found this very strange. You know, it's like saying, मुझे वो नथ दे दो जो कि मैं नाक पे पहन सकूं. It's like मुझे वो चश्मा दे दो जो कि मैं आंख पे पहन सकूं. कहाँ पहनूंगा? तो घुटने पे तो नहीं पहनूंगा. But then I realized जब लिखा गया होगा, maybe that person who wrote it was really far-sighted because he or she knew कि नथ आने वाले जमाने में केवल नाक पे नहीं पहना जाएगा. यहाँ पे भी पहनेंगे लोग, कहीं यहाँ कहीं भी पहनते हैं, यहाँ कहीं भी पहनेंगे. So very far-sighted. दूरदर्शी था ये जो भी folk singer था. हाँ. 1, 2, 3. नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. Do this. नथ बेशर मंगवा दे, मंगवा दे. ओ नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. ओ नथ बेशर बालम मंगवा दे, वरना मैं तो दे ना बोलूं रे. नथ बेशर मंगवा दे, मंगवा दे. ओ नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. नथ बेशर बालम मंगवा दे, मंगवा दे. ओ नथ बालम मंगवा दे, मंगवा दे. लुक छुप ना जाओ जी, तुम चैन दिखाओ जी. रह क्यों तरसावे हो, तुम्हारी शकल दिखाओ जी. थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मानस ले उन पंगा जी में कहने लगी. हमारे हिवर में जारी धोकड़ी रे, चंदा में थारी चांदनी मणि दामन में बांधी कुटी रे. जुम्बा 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 जुम. ओ हमारे हिवर में जारी धोकड़ी, चांदनी मणि दामन में बांधी कुटी रे. जुम्बा 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 जुम. You know what language was this? The last song that I just sang? No, it was not Punjabi. It was Rajasthani because this folk tale comes from Rajasthan, and the credit for collecting this tale, like you mentioned Cinderella, you know to whom the credit goes for collecting that tale? Brothers Grimm. Yeah? So they were the collectors. They listened to stories as they traveled and they brought Cinderella to us. Likewise, a gentleman called Vijayadan Detha, he was a person who lived very close to Jodhpur. He traveled across Rajasthan and beyond and he brought this story to us. This also has a very similar parallel really in Katha Sarit Sagar. So I don't really know where exactly it comes from. That's the problem with, or a good thing about perhaps with folk stories. You don't really know where exactly where the source is. But the one that I'm telling you, yes. I want to say that why sometimes when the story, everybody likes the story, still some people change it.
I want to know why is that? It just popped into my head. Let's listen to this story and let's look for places where changes are required. Very good point. Okay? And let's begin this story with your permission. Tum ta na na tum na 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 tum ta na na tum na 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 tum ta na na tum na 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 tum ta na na tum na 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 tum ta na na tum na 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 tum ta na na tum na 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 na. तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े से गांव के बड़े से ठाकुर साहब के साथ. Are you all generally good with following Hindi? I can, all right? I'll try and explain, but you know, I have very sort of short time and then it'll just get stretched. तो ये कहानी शुरू होती है एक बड़े से गांव के एक बड़े से ठाकुर साहब के साथ. ठाकुर साहब यूं तो आम इंसानों की तरह रोज रात को सोते, सुबह जागते, नहाते धोते, दांत मांजते, हाँ, चाय नाश्ता करते. पर एक बात ऐसी थी जिसे जानने के बाद आप ठाकुर साहब को एक आम इंसान तो नहीं कहेंगे, बल्कि शायद आप ठाकुर साहब को एक अव्वल दर्जे का पागल, बेशरम, बदतमीज, अजीबोगरीब या पापी इंसान भी कह सकते हैं. और वो बात ये थी कि हर रात को सोने के बाद, सुबह जागने के बाद, दांत मांजने के बाद, नहाने धोने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद हमारे ठाकुर साहब अपने घर की छत पे जाते और ठकुराइन को ऊपर बुलाते. ना हुज ठकुराइन? ठाकुर साहब की पत्नी इस ठकुराइन. हाँ, तो ठाकुर की पत्नी को बोलते थे ठकुराइन, चौधरी की पत्नी को, पंडित की पत्नी को. हाँ, so this was then, and even now, even in English, Mr. Sharma's wife is called Mrs. Sharma, Mr. Khan's wife is called Mrs. Khan, Mr. Matthew's wife is called Mrs. Matthew. Let's also look at professions. A female actor is called, a female god is called, a female prince is called, a female doctor is called, a female teacher is called. तो इससे पहले डॉक्टर का डॉक्ट्रेस और टीचर का टीचरेस बन जाए, here is a change that you might want to make note of. Yeah? तो ठाकुर साहब हमारी ठकुराइन को छत पे बुलाते सुबह, ठकुराइन को घर के छत की एक छोर पे खड़ा कर देते और खुद धनुष और बाण लेके छत की दूसरी छोर से, जो कि करीब 200 फुट की दूरी पे था, ठकुराइन के चूड़ी जैसे नथ के बीचों बीच से तीर छोड़ा करते. और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 108 तीर. अब आप बताइए, आप ऐसे ठाकुर साहब को क्या कहेंगे? पागल कहेंगे, साइको कहेंगे. पिछले 15 साल से रोज ठकुराइन ठाकुर साहब का ये जुल्म झेल रही थी. ठाकुर साहब के डर की वजह से उनसे कभी कुछ कह नहीं पाई. ठकुराइन का भूख, प्यास, नींद, चैन सब कुछ मिट चुका था. सूख के कांटा हो गई थी बेचारी. एक बार तो उसने ठाकुर साहब से कुछ कहने की कोशिश की भी, पर मजाल है ठाकुर साहब की रोज की आदत में कोई भंग डाले. तो हर सुबह ठाकुर साहब ठकुराइन की नथ के बीचों बीच से 108 तीर छोड़ा करते और तीरंदाजी की अपनी इस प्रतिभा पे रियली प्राउड, बहुत गर्व महसूस करते. अब एक रोज ठाकुर साहब के मैनेजर की भतीजी मैनेजर साहब के यहां रहने के लिए आई दूसरे गांव से. अब चूंकि ठाकुर साहब की मैनेजर की भतीजी थी तो जाहिर है उसकी मुलाकात ठकुराइन से भी हुई होगी. उसने ठकुराइन को पहली बार देखा तो उससे रहा नहीं गया, पूछी, हायरी जिज्जी, यू नो व्हाट जिज्जी इज? दी एल्डर सिस्टर. हायरी जिज्जी, तुम इतनी दुबली क्यों हो? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग भी इतना फीका है, कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुम्हें? अब पहले दिन तो ठकुराइन ने कोई और बात कह के ये बात टाल दी, पर दूसरे दिन फिर से वो मैनेजर की भतीजी याद धमकी, फिर से पूछ बैठी, हायरी जिज्जी, तुम इतनी दुबली क्यों हो? कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? तुम्हारे चेहरे का रंग भी इतना फीका है, कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुम्हें? अब जब 5वें दिन 5वीं बार उस मैनेजर की भतीजी ने ठकुराइन से पूछा, और क्या पूछा? हायरी, तुम इतनी, कुछ तुम्हारे चेहरे का कोई। अब जब पांचवी बार ये सवाल किया मैनेजर की भतीजी ने ठकुराइन से, तो ठकुराइन से रहा नहीं गया और उसने सारा सच उगल दिया।
अब जब मैनेजर की भतीजी ने बात सुनी तो उसको आया गुस्सा, बोली जिज्जी अगर मेरी शादी हो गई होती ना और मेरा नास पीटा पति मेरे साथ ऐसा करने की सोचता भी तो मैं उसे गाय का चारा खिलाती, अपने पैरों की धूल वाला पानी पिलाती और उसके कंधे पे बैठ के उससे गांव के पूरे 108 चक्कर लगवाती। ठाकुर साहब को ऐसे ही एक बीवी की जरूरत है। हां, अब मैनेजर की भतीजी की बातें ठकुराइन के दिल पे तीरों की तरह लगी, पर वो करती भी तो क्या करती, वो मान चुकी थी कि उसके हालात बदलने वाले नहीं है। अब एक रोज पूनम की रात थी, पूनम की रात, फुल मून। ठाकुर साहब अपनी छत पे बैठे अपने धंधे के बारे में, काम धंधे के बारे में कुछ सोच रहे थे कि उनकी नजर ठीक वहां पड़ी। नहीं, यहां वाला वहां नहीं, हाँ कहानी वाला वहां, कहानी वाले वहां में, वहां पूरा चांद था और चांद की इस भीनी सी रोशनी में को देखते देखते उनके मन में एक भोला सा ख्याल आया और उन्होंने ऊपर से ही आवाज लगाई, ठकुराइन। ठकुराइन नीचे अपना काम धाम समेट रही थी, बिस्तर बना रही थी कि उसको लगा रात इतनी रात गई, ठाकुर साहब ने मुझे क्यों बुलाया। और सब कुछ छोड़ छाड़ के छत की तरफ दौड़ी और जैसे ही छत पे पहुंची उसे समझ आ गया कि ठाकुर साहब ने उसे क्यों बुलाया। ठाकुर साहब अपना धनुष और बाण लेके पहले से तैयार खड़े हुए थे। चांद की इस मोहक रोशनी में तुम्हारे नथ से 108 तीर पार करने में कितना आनंद आएगा ना। अब आप बताइए, चांद, पूरे चांद की रोशनी क्या तीरंदाजी के लिए बनी है? पूरे चांद की रोशनी तो दो चार मीठे बोल बोलने के लिए बनी है, कुछ रोमांटिक गाने गाने के लिए बनी है। जैसे मेरा चांद मुझे आया है नजर, या फिर चांद छिपा, हाँ सॉरी, चौदहवीं का चांद हो। एनी अदर चांद सॉन्ग्स दैट यू माइट नो एक्सेप्ट फॉर चंदा मामा? हाँ, नो चंदा मामा दूर के, दैट डजंट वर्क हियर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ऑल दिस। पर क्या हमारे ठाकुर साहब को ये रोमांटिक गाने समझ आने वाले थे? ठाकुर साहब को बस अपने 108 तीर और धनुष दिख रहा था और एक के बाद एक ठाकुर साहब ने फिर से ठकुराइन की नथ के बीचों बीच से तीर छोड़ने शुरू कर दिए। ठकुराइन ये जुल्म भी डरी हुई, सहमी हुई, ठिठुरती हुई झेलती रही। जब 108वां तीर ठकुराइन की नथ को पार कर गया तो ठाकुर साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब ठकुराइन डरी जरूर थी लेकिन बहुत गुस्से में भी थी, अपनी भड़ास ठाकुर साहब पर उतार तो सकती नहीं थी, तो मैनेजर की भतीजी वाली बात ठाकुर साहब को बता दी। सुनिए जी, आपके वो मैनेजर की भतीजी है ना, वो आई थी, कह रही थी कि अगर उसकी शादी हो गई होती और उसका नाच पीटा पति उसके साथ ऐसा करने की सोचता भी तो वो उसे गाय का चारा खिलाती, उसको पैरों के धूल वाला पानी पिलाती और उसके कंधे पे बैठ के उसको 108 चक्कर लगवाती। और वो ये भी कह रही थी आपको एक ऐसी पत्नी की जरूरत है। हाँ, ठाकुर साहब ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उनकी इस अद्भुत कला, इस हैरत अंगेज हुनर के बारे में कोई इतनी बुराई, इतनी निंदा कर सकता है, खासकर एक औरत। ठाकुर साहब का कि गुस्से का अब कोई ठिकाना नहीं था। उनके अंदर ही अंदर मानो उनका खून उबाल ले रहा था और उन्होंने तय किया कि अब उनके कलेजे को तभी ठंडक मिलेगी जब वो इस मैनेजर की भतीजी से भी शादी कर लेंगे और उसके नथ से 108 नहीं 1008 तीर छोड़ेंगे। ठाकुर साहब तुरंत मैनेजर के घर गए, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। मैनेजर ने दरवाजा खोला, बोला अरे हुजूर, अन्नदाता, मेरे आका, आप इतनी रात गए, मुझे बुला लिया होता। ठाकुर साहब ने मैनेजर को सारी बात बताई और कहा कि उनकी भतीजी की उनसे तुरंत शादी कराई जाए। मैनेजर ने जब अपनी भतीजी से पूछा तो भतीजी ने कहा, हाँ चाचा जी, मैंने कहा था और आप एक बार आजमा कर तो देखिए, जो कहा है करके दिखाऊंगी। मैनेजर ने अपने ठाकुर साहब से माफी मांगी, कहा बच्ची है, भोली है, नादान है, उसे माफ कर दीजिए। लेकिन ठाकुर साहब के कलेजे को तो अब तभी ठंडक मिलने वाली थी जब वो 1008 तीर इसकी नथ से पार कर लेते। तो रातों रात ठाकुर साहब और मैनेजर की भतीजी की शादी कराई गई। मैनेजर की भतीजी यानी छोटी ठकुराइन को वो अपनी छत पे ले गए क्योंकि चांद अभी तक डूबा नहीं था और वो अपने धनुष और बाण इकट्ठा कर ही रहे थे कि वो छोटी ठकुराइन यानी मैनेजर की भतीजी जोर जोर से हंसने लगी। ठाकुर साहब चिल्लाए, बोले बदतमीज लड़की, हंस क्यों रही है? तो छोटी ठकुराइन बोली, आप जो ये अपना तीर अंदाजी का प्रदर्शन करके इतने बड़े वीर सूरमा बनते हैं ना, अगर सचमुच के वीर हैं तो पहले शहर जाइए और शहजादी मधुमती से शादी करके आइए तो जाने।
अब शहजादी मधुमती वॉज अ प्रिंसेस, वो एक शहजादी थी, लेकिन पिछले 3 साल से बिल्कुल चुप थे। एक शब्द, एक वर्ड, एक लफ्ज नहीं उगला था उसने अपने मुंह से। उसके माता पिता बड़े परेशान थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जिस किसी ने भी शहजादी मधुमती के मुंह से कुछ बुलवा दिया, उसकी शहजादी मधुमती से, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे जेल में जाके, अरे वाह, यू हैव एक्सपीरियंस, जी बिल्कुल, उसे जेल में जाके चक्की पीसनी पड़ेगी। और पिछले 3 साल में 17 राजा और ठाकुर शहजादी मधुमती से कुछ बुलवाने की कोशिश कर चुके थे और सबके सब जेल में बैठे। तुम्हारे छोटी ठाकुराइन ने कहा, अगर आपने शहजादी मधुमती से कुछ बुलवा दिया तो 1008 क्या, आप 10,008 तीर मेरी नथ को पार कर लीजिएगा और मैं कुछ नहीं कहूंगी। यह सुनते ही ठाकुर साहब ने धनुष और तीर किनारे फेंके और प्रण लिया कि अब वो गांव तभी वापस आएंगे जब वो शहजादी मधुमती से शादी कर चुके होंगे। और पिछले 15 साल से बड़ी ठाकुराइन जो जुल्म झेल रही थी ठाकुर साहब का, उसने चैन की सांस ली कुछ दिन के लिए। चैन की सांस लेनी आती है आपको? तुम तना ना तुम ना ना ना, तुम तना ना तुम ना ना ना, तुम तना ना तुम ना 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 ना, तुम तना ना तुम ना ना ना, तुम तना ना तुम ना ना ना, तुम तना ना तुम ना 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 ना। अगले दिन ठाकुर साहब उस शहर पहुंच गए जिस शहर में शहजादी मधुमती का किला था। शहर के बाहर कुछ सैनिक नगाड़े लिए खड़े थे। नगाड़े इज लाइक अ स्मॉल ड्रम विद दीज 2 स्टिक्स दैट यू हैंग। तो कुछ सैनिक नगाड़े लिए खड़े थे। पिछले 3 साल में शहजादी मधुमती ने अपने मुंह से कुछ नहीं उगला था और राजा रानी ने ऐलान कर दिया था कि जिस दिन भी शहजादी मधुमती अपने मुंह से कुछ कहेगी तो नगाड़ों की गड़गड़ाहट आसमान तक गूंजनी चाहिए। लेकिन शहजादी मधुमती का बोलने का इंतजार करते करते ये सैनिक भी एकदम बुत बने, स्टैचूज बने रह गए थे। खैर, हमारे ठाकुर साहब किले के रास्ते के थ्रू शहजादी के स्वर्ण महल यानी गोल्डन पैलेस में पहुंचे। पूरे गांव को खबर मिल गई थी कि पास के गांव से ठाकुर साहब आए हैं कोई, और पिछले 17 राजा और ठाकुरों की नाकाम कोशिशों के बाद शायद ये ठाकुर साहब हमारी शहजादी से कुछ बुलवा पाने में कामयाब हों। खैर, हमारे ठाकुर साहब शहजादी के स्वर्ण महल में दाखिल हुए। थोड़ी देर में शहजादी मधुमती भी अपने महल में दाखिल हुई, अपने सिंहासन पर बैठी। और ठाकुर साहब ने जैसे ही शहजादी मधुमती को देखा, वो बुत बने देखते ही रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सौंदर्य का दृश्य इतना खूबसूरत, इतना मनमोहक हो सकता है। उन्होंने तय कर लिया था कि जरूर रोज सुबह का सूरज शहजादी के स्वर्ण महल से ही उदय होता हो। वैसे ये जो खूबसूरती और ऑब्जेक्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है, ये भी जिम्मेदारी सारी की सारी कहानियों में ना औरतों पे ही थोपी जाती है। हमारे ठाकुर साहब कितने भी साइको क्यों ना हो सकता है बड़े खूबसूरत रहे हो, लेकिन कोई बताएगा ही नहीं कि कैसे थे देखने में। हाँ, अब आप लोग बोलेंगे पुरानी कहानियों में, हम आपको आज की कहानी का एक नमूना एग्जाम्पल देते हैं, सुनिएगा। यू माइट हैव हर्ड दिस स्टोरी। इट गोज लाइक दिस। देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूं क्या भला, कुछ भी कहा ना जाए, क्या नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, क्या नाचे तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई ढाएं। हाँ, दिस बिट हैज ऑल्सो नॉट चेंज्ड और परहैप्स गॉटन वर्स, I wonder. But another point, you were talking about change earlier, huh? So I'm just kind of pointing it out. हमारे ठाकुर साहब बहरहाल आए तो थे शहजादी से कुछ उगलवाने, लेकिन उनके मुंह पे मानो खुद ताला लग गया। ठाकुर साहब दिन भर, शाम भर, रात भर शहजादी मधुमती को ताकते रहे और उनको तब होश आया जब सुबह शहजादी मधुमती के सैनिक उनको जेल ले जाने आए बंदी बना। जेल में बैठे 17 राजा और ठाकुर बहुत खुश थे क्योंकि चक्की पीसने में उनको एक और असिस्टेंट मिल गया था। वहां ठाकुर साहब के गांव में पहले 20-21 दिन तो किसी के कानों में जू भी नहीं रहेगा। 22वें दिन यह खबर आई कि ठाकुर साहब गए तो थे शहजादी से कुछ बुलवाने, लेकिन उनकी खुद की बोलती बंद हो गई थी। और खबर यह भी थी कि चक्की पीसने में ठाकुर साहब का हाथ जरा तंग है,
लेकिन कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद वो भी ठीक हो जाएगा। वहां बड़ी ठकुराइन का जो शरीर था थोड़ा स्वस्थ होता जा रहा था। छोटी ठकुराइन लेकिन ये बात जानती थी कि शहजादी मधुमती से कुछ बुलवा पाना ये हमारे ठाकुर साहब के बस की बात न थी। और वो ये भी जानती थी कि कितने भी पापी, साइको, बदतमीज के क्यों ना हो, उनको छुड़वाना तो उसे पड़ेगा ही, ये जिम्मेदारी तो उसके पास है ही। तो अगले ही दिन तीर्थ यात्रा का बहाना करके छोटी ठकुराइन भी उस शहर की ओर चल पड़ी जहां शहजादी मधुमती का किला था। तुम तना न तुम ना ना ना, तुम तना न तुम ना ना ना, तुम तना न तुम ना 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 ना, तुम तना न तुम ना ना ना, तुम तना न तुम ना ना ना, तुम तना न तुम ना 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 ना। अगले दिन छोटी ठकुराइन भी उस शहर पहुंच गई जहां शहजादी मधुमती का किला था। शहर पहुंच के शहजादी छोटी ठकुराइन ने आदमियों के कपड़े पहने, नकली मूछें लगाईं, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी और एक अपनी कमर में तलवार फंसा के किले की ओर चल पड़ी। Why do you think she did that? Why did she have to become a man? Yes. They only allowed men. Yes, possible. That is definitely a possibility. Shehzadi was a girl, so only Men were allowed to go there. Yeah. Possible. So, Yeah, quick. Yeah, thank you. Yes. What about you? I think that only like people, men are allowed to go there again. So she's trying to dress up as a man so she can go there. Yeah. it was said that that anyone could marry the person who was making Rani speak. So only men could be there. No girl could marry her. Okay, keep that in mind. Okay, Rani, you can. yeah. Thank you so much once again. तो शहजादी मधुमती दाखिल हुई किले में। किले में पहले से ही छोटी ठकुराइन दाखिल हुई किले में छोटे ठाकुर बन के, क्योंकि वो कपड़े ठाकुरों के पहने हुई थी और आदमी बनी हुई थी। शहजादी मधुमती पहले से ही अपने सिंहासन पर विराजमान थी और सच में क्या बला की खूबसूरत थी शहजादी मधुमती। 18,000 राजा भी कुर्बान हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे ठकुराइन यानी छोटे ठाकुर ने शहजादी मधुमती को देखा, दोनों की आंखें मिली और कुछ तो हुआ जिसके चलते दोनों की धड़कनें तेज हो गई। और इस तेज धड़कन में इतनी गहराई थी कि शहजादी मधुमती के गले पे लिपटी हुई सुनहरी चुन्नी में जान आ गई। कि इतने में छोटे ठाकुर यानी छोटी ठकुराइन ने शायराना अंदाज में कहना शुरू कर दिया कि जैसे नमक बिन खाना बेकार है, जैसे आलू बिन समोसा बेकार है, जैसे मछली बिन नदिया बेकार है, जैसे ट्रैफिक जैम्स बिन बेंगलुरु बेकार है, ठीक वैसे ही वाह वाह बिन कहानियां बेकार है। यू नो व्हाट वाह वाह इज? वाह 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 वाह, नो अप्रिसिएशन, नो नॉट। तो क्या कहा छोटी ठकुराइन यानी छोटे ठाकुर ने कि जैसे नमक बिन खाना बेकार है, जैसे आलू बिन समोसा बेकार है, जैसे मछली बिन नदिया बेकार है, जैसे ट्रैफिक जैम्स बिन बेकार है, ठीक वैसे ही वाह वाह बिन कहानी बेकार है। तो है कोई इस सभा में जो मेरी कहानी सुने और मेरी कहानी पे वाह वाह करे? आप लोग तो वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन उस सभा में पूरी चुप्पी सधी हुई थी, कोई कुछ नहीं कह रहा। तो एक बार फिर छोटे ठाकुर ने कोशिश की कि जैसे नमक बिन कहानी बेकार है। वेरी गुड, या कहानी शुड ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ सेवर एंड स्वीट एंड ऑल दैट, बट जैसे नमक बिन, जैसे आलू बिन, जैसे मछली बिन, जैसे ट्रैफिक जैम्स बिन, ठीक वैसे ही वाह वाह बिन। तो है कोई इस सभा में जो मेरी कहानी सुने और इस कहानी पे वाह वाह करे? कि तभी शहजादी मधुमती के गले पे लिपटी हुई चुन्नी बोली, मैं सुनूंगी तुम्हारी कहानी, मैं करूंगी तुम्हारी कहानी पे वाह वाह। अब शहजादी मधुमती अपनी चुन्नी को बहुत भला बुरा कहना चाह रही थी, लेकिन अपने ना बोलने के प्रण से बंधी हुई थी। कि उसी समय छोटे ठाकुर ने अपनी कहानी शुरू कर दी। एक गुरु थे, गुरु का एक शिष्य था। गुरु ने अपने शिष्य से एक दिन कहा कि वत्स, इस दुनिया में कई अजूबे हैं, जहां जाओ जहां देखो वहां अजूबे मिलेंगे, बस सवाल यह है कि तुम अपनी आंखें और कान खुले रख सकते हो कि नहीं। तो गुरु का इस कथन को परखने के लिए, टू टेस्ट व्हाट द गुरु हैड सेड, शिष्य एक दिन
अजूबों की खोज में निकल पड़ा। और मजे की बात यह है कि उसको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। वो थोड़ी दूर चला कि उसको एक आदमी धनुष लटकाए जमीन पे बैठा देख रहा था, जो कि आसमान की तरफ देख रहा था, कुछ ऐसे। उससे पूछने पे उसने बताया कि 6 महीने पहले मैंने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा था, ससुरा अभी तक नीचे ही नहीं आया। पता नहीं उसे आसमान निकल गया कि सूरज खा गया। उसका इतना कहना था कि एक बाण बहुत तेजी से जमीन की तरफ नीचे आया और जमीन में 200 फुट छेद करके अंदर घुस गया। धनुर्धारी ने एक दूसरा तीर निकाला और उस छेद की तरफ छोड़ दिया, और जैसे ही यह तीर इस छेद के अंदर गया, एक पानी का बड़ा सा फवारा निकलने लगा। धनुर्धारी ने बताया कि इस गांव में पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। ये पानी का फवारा सब कुछ ठीक कर देगा। मैंने तो अभी ढूंढना शुरू भी नहीं किया था और मुझे अपना पहला अजूबा मिल गया। शिष्य ने धनुर्धारी से कहा, धनुर्धारी, मैं तुम्हारी तरीके के अजूबों में की तलाश में हूं। तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों और अजूबों की तलाश में चल सकते हैं। तो धनुर्धारी और शिष्य थोड़ा और आगे बढ़े कि उनको एक आदमी दिखा जो कि दूर देख रहा था और कुछ उछल रहा था, कुछ इस तरीके से। वो भूरी वाली काफी तेज भाग रही है, वो सफेद वाली चौथी से 5वीं, अभी तीसरी से दूसरी और आगे होती जा रही है, और काली वाली भी बहुत तेज है। शिष्य को लगा ये तो जरूर कोई पागल है, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन धनुर्धारी ने कहा, देखो बॉस, बिना पागलपन के कोई अजूबा नहीं बन पाता। तो दोनों उससे बात करने लगे। उससे पूछा, उसने बोला, देखते नहीं घुड़दौड़ चल रही है। यू नो व्हाट घुड़दौड़ इज? हॉर्स रेस। हाँ, देखते नहीं हॉर्स रेस चल रही है। हॉर्स रेस? कहां है हॉर्स रेस? कुछ भुज में। कुछ भुज? कहां है कुछ भुज? अरे है कुछ 400 किलोमीटर दूर। 400 किलोमीटर दूर? तुमको 400 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहा है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैं बैंगलोर में खड़ा होके वहां दूर प्राइम मिनिस्टर हाउस दिल्ली का हाल बता सकता हूं। तो ये था हमारा दूसरा अजूबा। अब धनुर्धारी अजूबा और दूरदर्शी अजूबा और शिष्य थोड़ा और आगे बढ़े कि उनको एक आदमी दिखा जो कि बहुत तेजी से फूंक मार रहा था। कैन यू फूंक मार सकते हैं आप लोग? लेकिन उस आदमी की फूंक इतनी तगड़ी, इतनी स्ट्रांग थी कि बीच में नदी, पहाड़ और पेड़ और मकान सब किनारे हुए जा रहे थे और एक सड़क बनी जा रही थी। उससे पूछा तो उसने बताया कि राजा परिषद की सेना आ रही है और सेना के लिए एक सड़क की जरूरत है। तो ये था हमारा तीसरा अजूबा। अब तीनों अजूबे और शिष्य थोड़ा और आगे बढ़े कि उनको एक आदमी हिरणों यानी डियर के झुंड में दौड़ता हुआ दिखा, जो कि हिरणों से भी तेज दौड़ रहा था और दौड़ते दौड़ते हर हिरण के गले में एक घंटी बांध रहा था। पूछने पे उसने बताया कि राजा परिषद की सेना के साथ शिकारी भी आ रहे हैं और गले में बंधी हुई घंटी वाले जानवरों का वो शिकार नहीं करेंगे, इसलिए इन हिरणों के गलों में घंटी बांध रहा हूं। तो ये था हमारा। तो ये चारों अजूबे और शिष्य एक राजा के महल में दाखिल हुए। राजा जी अपने महल में मुंह लटकाए, सर झुकाए बैठे हुए थे कि उनसे बगल में पुरोहित जी थे। उनसे पूछा तो पुरोहित जी ने बताया कि अगर अगले 1 घंटे में राजा जी की बाएं हाथ की कलाई पे एक मोतियों से जड़ी सोने की घड़ी बंधी होगी तो अगले 250 साल तक राजा जी का परिवार यहां राज करेगा। तो अजूबों ने कहा, ये तो अच्छी बात है, आप लोग दुखी क्यों हैं? हाँ, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो अगले ही दिन राजा साहब का राजपाट उनसे छिन जाएगा। ये कहते ही तेज दौड़ने वाला अजूबा बोला, 1 घंटे में तो मैं कुछ भुज के शाही खजाने में था वो वैसी एक घड़ी। हाँ, तो तेज दौड़ने वाला अजूबा बोला कि 1 घंटे में तो मैं कुछ भुज के 4 चक्कर लगा लूं। और तेज फूंकने वाला अजूबा बोला कि मैं तुम्हारे लिए फूंक के सारा रास्ता साफ कर देता हूं। और धनुर्धारी ने बोला, अगर कुछ भुज की सेना ने तुम पे हमला किया तो मेरे आक्रमण से भी वो बच नहीं पाएंगे। और तेज दूरदर्शी वाले ने बोला कि मैं तुमको रास्ता बता देता हूं। कि इतने में तेज दौड़ने वाला अजूबा कुछ भुज की तरफ दौड़ पड़ा और दूरदर्शी अजूबे ने रनिंग कमेंट्री देनी शुरू कर दी। वो निकल पड़ा है, वो 100 किलोमीटर आगे चला गया, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, वो कुछ भुज पहुंच गया है। वो कुछ भुज के शाही खजाने के अंदर घुस रहा है और मेरी बताई हुई जगह पे उसने घड़ी देख ली है, उसने घड़ी उठा ली है, वो हमारी तरफ वापस आ रहा है, बहुत तेज दौड़ता हुआ, एकदम फ्लैश की तरह, नहीं सुपरमैन की तरह, नहीं कौन है वो, थॉर की तरह, नहीं एक आंधी की तरह। और ये क्या, वो बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लेट गया है। सांप है वहां, सांप
इतने में धनुर्धारी ने उस तरफ इशारा किया और निशाना लगाया, और जैसे ही तीर छोड़ा, ये सांप जो कि हमारे अजूबे को डसने वाला था, उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। 40 मिनट भी नहीं हुए थे कि हमारे राजा जी के बाएं हाथ की कलाई पे मोतियों से जड़ी एक सुनहरी घड़ी बंधी हुई थी। राजा जी वॉज रियली हैप्पी, और राजा जी ने 4 में से 3 अजूबों को अपने मंत्रिमंडल में दाखिल कर लिया, और जो सबसे खास अजूबा था उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो छोटे ठाकुर यानी छोटी ठाकुराइन ने अपनी कहानियां रोकी और कहा और पूछा कि सवाल यह है कि वो सबसे खास अजूबा था कौन? शिष्य, वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। एनी अदर आइडियाज? सॉरी, दूरदर्शी। कि इतने में सुनहरी चुन्नी चिल्लाई, बोली इसमें कौन सी खास बात है? तेज फूंक मारने वाला सबसे खास था। अगर उसने तेज फूंका नहीं होता तो रास्ता साफ नहीं हुआ होता और हमारा तेज दौड़ने वाला अजूबा सही टाइम पे घड़ी ला नहीं पाता। तो छोटे ठाकुर बोले, अरे नहीं चुन्नी, तेज दौड़ने वाला ही तो सबसे खास था। अगर उस जैसा दौड़ने वाला ना होता तो घड़ी आती कैसे? तो तेज चुन्नी बोली, नहीं नहीं, तेज फूंकने वाला सबसे खास था। छोटे ठाकुर बोले कि तेज दौड़ने वाला सबसे खास था। चुन्नी क्या बोली? तेज। छोटे ठाकुर क्या बोले? चुन्नी। ठाकुर। चुन्नी। ठाकुर। चुप हो जाओ तुम दोनों, बंद करो अपनी बहस। तो शहजादी मधुमती बोली, तुम दोनों को कुछ नहीं पता। ना तो तेज फूंकने वाला सबसे खास था, ना तेज दौड़ने वाला। अगर कोई सबसे खास था तो वो था अपना धनुर्धारी। अगर उस जैसा अजूबा नहीं होता तो एक अजूबा आज मरा पड़ा होता। लेकिन क्या छोटे ठाकुर यानी छोटी ठाकुराइन को इस बात से फर्क पड़ता है कौन सबसे खास था कौन नहीं? उसको किस बात से फर्क पड़ता है कि शहजादीमती बोले और वो बोल पड़ी तो बजाओ नगाड़े, तुम तना ना तुम ना ना, तुम तना ना तुम ना ना, तुम ना ना तुम ना ना ना। पूरे शहर इस शहजादी मधुमती के बोलने की खुशी में झूम उठा। पूरा शहर बहुत खुश। उसी रात को छोटी ठाकुराइन और शहजादी मधुमती की शादी कराई गई। अच्छा, ये क्या सरप्राइज है? वहां ठाकुर साहब तीसरी शादी करने को जा रहे हैं, वो सरप्राइज नहीं है। खैर, शादी के बाद छोटी ठाकुराइन ने सारा सच शहजादी मधुमती को बता दिया। शहजादी मधुमती के दिल को झटका बहुत लगा, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश थी कि किसी भी मर्द में उसे बुलवा पाने की इंटेलिजेंस नहीं थी। शहजादी मधुमती ने छोटी ठाकुराइन से कहा, क्यों ना तुम यहीं रुक जाओ, हो ना हो हम में कुछ तो कनेक्शन है, क्यों ना तुम मेरी सलाहकार, मेरी दोस्त बन के यहीं रहो। तो छोटी ठाकुराइन बोली, यानी कि नेकी और पूछ पूछ शहजादी मधुमती, लेकिन मेरा एक काम कर दीजिए, वो सारे प्रिजनर्स को प्लीज छोड़ दीजिए। तो जाहिर है सारे कैदी रिहा कर दिए गए। ठाकुर साहब को भी रिहा किया गया। ठाकुर साहब ने गांव जाके गाय का चारा खाया। छोटी ठाकुराइन जो कि अब वापस मैनेजर की भतीजी बन चुकी थी, उसके पैर का पानी का पीना पड़ा उसे, और मैनेजर की भतीजी को कंधे पे बैठा के गांव के 108 चक्कर भी लगाने पड़े। और बड़ी ठाकुराइन और उनका शरीर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मोहर लिया तूने ऐसा खेला दाव, खाए हिचकोले मारे मन की नाव, हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे से ले वो न पंगा जी मैं कहन लगी कि मारे हिवड़े में जागी धोकड़ी रे चंदा में थाड़ी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे, जुम्बा 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 जुम ओ, मारे हिवड़े में जागी धोकड़ी रे चंदा में थाड़ी, चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे, जुम्बा 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 जुम। Thank you.